ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। I'll chant the Mangalacharan. वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते. Om. We are studying or having satsang around the text Tattvabodh by Adi Shankaracharya, and we have done 4 verses, and these verses deal with the adhikari, the one who should be studying and benefiting from this. So in the Mangalacharan itself, Bhagwan Shankaracharya said that the text will help mumukshus, and mumukshus are those who are yearning for liberation. And then he says that for understanding this text, you need to have sadhan chatushtaya. So it's a kind of a qualification without which you will not be able to progress into the finer points of the text, let alone get the learning out of it. So now the point is that the first one that we saw, sadhan chatushtaya means 4. The first one we saw was nitya anitya vastu viveka, and that we said was one which is eternal and the other which is transitory. And what is eternal is only one, and that is Brahman. Everything else is transitory. So you should have the ability to discern between the two. Now, having acquired the ability, or rather having understood this, what do you do with it? Is that enough? So what is to be done after having understood what is eternal and what is not eternal, or what is perishable? What is to be done after that knowledge? Then we focus on the Atma, because that one don't want any of these, not to have any attachment towards things that are changing, which are perishable. So once we have that ability to discern, then we'll be able to look inward. Yeah. So we'll not go into detachment right away, we'll go into detachment later on. But we have to understand that once the knowledge of what is eternal and what is not eternal is given, and he says that the eligibility for knowing yourself, for knowing the truth, then it becomes imperative that ongoingly, whatever we do, we should be clear we are in touch with the perishable or in touch with the permanent. And if we are in touch and pursuing the perishable, then you know that you are going towards the wrong end. So how you are going to detach and all will come. So having said that, let us read the 5th verse. So first was nitya anitya vastu viveka, and the second he said was iha mutrarth phal bhoga viraga, which we said was not having, or rather to have dispassion for enjoying the fruits of our action here and hereafter. So now 5th verse is viraga kaha. What is viraga? Iha swarg bhogeshu ichha rahityam. Iha is here, swarg is heaven, bhogeshu
enjoying the fruits in heaven or here. Ichha rahityam. Rahityam means without. Ichha is want. So basically it becomes, what is dispassion? The absence of desire for the enjoyment of the fruit of one's actions in this world and in heaven. That is vairagya. Right. So you had asked a question, what is wrong? You understand, you remember the question, na? And you also, you remember the discussion. So here is that vairagya, whatever you are doing, if you are having any desire for enjoying the fruits of the action, whatever you have done, then you do not have vairagya. And if you do not have vairagya, then you are not getting this knowledge. So you were saying that to develop dispassion. Now this dispassion comes with this knowledge. If you want dispassion, only then you get. If you want the knowledge, you only get it if you have dispassion. So let's read. People fear the word dispassion. And in fact, I think it is much misunderstood. Moment we talk of dispassion, it seems that people are saying घर बार छोड़ के चले जाओ. So we need to understand that properly. They feel that they have to give up their spouse and children, which is what I was just saying, and all the pleasures of life to gain dispassion. Dispassion does not imply running away from society or halting it and criticizing its enjoyments. It is also not the apparent disinterest that one shows when the object is not available. Alabhe वैराग्य. सी वी से ना, वो एक कहानी थी बचपन में, अंगूर खट्टे हैं, तो आपको अंगूर तो मिल नहीं रहे जंप करने के बाद, तो आपने कह दिया खट्टे हैं, छोड़ दिए. सो अब आपको ये कोई योर हार्ट फेल्ट डिज़ायर इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, सो इसे चलो यार मुझे तो वैराग हो गया. दैट इज़ नॉट वैराग, राइट. और फॉरबिडन लाइक द डायबिटिक्स शो ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड स्वीट्स. अब आप तो हैं डायबिटिक, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब आपके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मेरा तो वैराग हो गया. दैट इज़ नॉट वैराग. इट इज़ नॉट टेम्पररी लैक ऑफ इंटरेस्ट दैट वन फील्स टुवर्ड्स प्लेजर्स ऑन द डेथ ऑफ अ डियर वन. इसको कहते हैं शमशान वैराग्य. तो ये जितनी भी जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ना, यू कैन राइट डाउन समवेयर. दीज आर टर्म्स दैट विल कम अप इन वेरियस टेक्स्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स. अब शमशान वैराग्य जो है वो टर्म ऐसा है कि जब क्रिमेशन के लिए जाते हैं शमशान घाट, तो वहाँ जाके हर आदमी को लाइफ से वैराग हो जाता है, बिकॉज वहाँ देखते हैं कि हर चीज़ तो इसका तो एंड यही है. लेकिन जैसे ही वापस आते हैं फिर से वो अपना शुरू हो जाता है, द सेम दुनिया का संसार. सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वैराग्य. दैट इज़ व्हाट इज़ पॉइंटिंग आउट. वो टेम्पररी, जस्ट फॉर half an hour you have been to Samshan Ghat and developed Vairagya, says that is also not Vairagya. Man runs after objects thinking that they give joy. By objects is also implied persons and situations. If you remember, we were talking once that everything, thoughts, ideas, this world, anything of Jagat, it is an object. And you are the subject. So, by objects is also implied persons and situations. He is temporarily happy when he gains them and unhappy when he does not. His craving increases as also his dependence on the object. When he has determined the sorrowful and impermanent nature of objects, he stops craving for them. ये आप कब सोचते हो कि ये कब आएगी? Just read the sentence yourself. When he has determined the sorrowful and impermanent nature of objects, he stops craving for them. I think जब हमें का ज्ञान हो जाए, जब हमें
नित्य अनित्य का ज्ञान हो जाएगा, मतलब हाँ। हम भी डिस्टिंग्विश, देन वील रियलाइज कि जो भी टेम्पररी है वो तो हमें कोई वो नहीं देगा, सुख नहीं देगा. So I guess that's when we will stop craving. Okay. Anil ji, how would you put it? मैं तो ये करूँगा कि मैंने तो बहुत मनन किया है और मैंने जब भी और सैकड़ों हजारों बार ये सोचा है कि whether it is my wife, whether it is my child, whether it is any of these worldly things, ये impermanent है और ये कभी भी जा सकती है. और 20 साल पहले भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, 25 साल पहले, Befriend यमराज, द डेथ गॉड, कि यमराज से दोस्ती करें लोग. तो सब कुछ इम्परमानेंट है और सबसे बड़ा तो हम ही इम्परमानेंट है. आई लॉस्ट माई मदर, देन अ 8-year-old नेफ्यू. तो मोह नहीं करें, ये इम्परमानेंट है, ये कभी भी चले जाएंगे, किसी को दुख मत दो, इसमें कहीं पर भी कोई शंका नहीं है. लेकिन उसके बावजूद मतलब मेरे को लगता है सत्संग से फर्क पड़ रहा है कि डिस्पैशन या थोड़ा विराग हो रहा है, बट सारा झंझट तो इसी राग का है. तो ये इम्परमानेंट है. जैसे भज गोविंदम में भी है कि वो कमल के लीफ पे पानी की बूंद की तरह हमारा जीवन है, कभी भी वो जा सकता है. या बचपन में मैंने पढ़ा था कि पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य की जात है जो कभी भी टूट सकता है. तो ये सब चीजें, ये क्षण भंगुर है, ये पता है, लेकिन माया का प्रभाव कहिए या अज्ञान कहिए या राग कहिए, जो भी कर ले, वो इतना प्रबल है कि जब तक प्रभु से राग नहीं बढ़ेगा, जब तक नित्य अनित्य विवेक हर सांस में, हर कर्म में उसका साथ रहेगा, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे गुरुजी लगते हैं, when he has determined the sorrowful and permanent nature of objects, he stops craving for them. तो मेरा अपना अनुभव है कि डिटरमाइन करने के बाद क्रेविंग नहीं गई है. हुई है, आई मे से यस. बट मैंने तो जब भतीजे की डेथ हुई थी 1990 में, पूरे परिवार के सामने मैंने प्रॉमिस किया था, मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, कोई कभी भी जा सकता है. लेकिन फिर भी जब आवेश में आए तो हमने पिछले 26 सालों में कईयों को दुख दिए हैं. तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, वो जो पल पल स्मरण रहे, जो राग प्रभु से रहे, नित्य से रहे, और उस नित्य के राग में भी जो मुझे लगता है कि जब विचार शिथिल होते हैं या सच के हम करीब होते हैं, तो जो शांति महसूस होती है, ब्लिस का तो मुझे पता नहीं है, बट जो डीप साइलेंस है, उसमें बहुत एक आई वुड से जो हैप्पीनेस है, आनंद तो ब्लिस ही हो गया, वो बाकी चीजों में नहीं है. और वो हमेशा अवेलेबल है. जब आप शांत हो तो चैतन्य अवेलेबल है. लेकिन मन इतना विचलित है, या इतनी माया का प्रभाव है, या ज्ञान इतना गहरा है, तो इस जो पर्टिकुलर लाइन है कि हिज क्रेविंग इंक्रीजेस एज ऑल्सो हिज डिपेंडेंस ऑन द ऑब्जेक्ट, ये बात सही है कि जितना हम वो उसको सुख मानेंगे और उससे लगाव करेंगे कि मैंने अभी ये काम किया, इसका ये अच्छा फल आया और ये फिर से हो, और उससे लगाव कर लिया, तो वो तो निश्चित तौर पर तकलीफ देगा. लेकिन जो गुरुजी ये कह रहे हैं कि when he has determined the sorrowful and impermanent nature of object, he stops craving for them. मेरे को लग रहा है क्रेविंग शायद वीकन होती है, बट वो माया बहुत सुदृढ़ है.
वेरी इंटरेस्टिंग। तो अनु जी, आपने सुना ना अनिल जी को, ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया बोला है। और आज ही मैं एक संत को सुन रहा था, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन करा था कि मैं 25 साल से जप कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझ में बहुत बदलाव आ गया, लेकिन कामना नहीं गई। तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं वृंदावन में, आई थिंक प्रेम सागर जी उनका नाम है, बहुत काफ़ी चर्चित हैं वो आजकल, स्वामी प्रेमानंद जी। तो उनके दर्शन के लिए, खैर चलो वो लंबी कहानी क्या करनी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जिसको भी ऐसे हो रहा है वो भी भगवान की कृपा है, और उसको देख ले और प्रभु से और जुड़ने की कोशिश करे, जो अनिल जी ने कहा भी। बहुत सुंदर बात कही अनिल जी ने। और दूसरी बात यह है, कभी किसी भी तरह से अपने आप को उसके शिकंजे में ना फंस जाए। वो कहते हैं वो काम वासना से लास्ट में जाती है। When I'm saying काम वासना, I'm only not only talking, that person was talking of only sexual pleasure, but I'm talking of any काम, all sensual desires. अब क्या है कि उन्होंने इसका दिया, वो तब जाएगी जब आपका भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा, तब वो खत्म हो जाएगी, फिर नहीं तंग करेगी। अब चेक करिए, हम लोग तो सीकर्स हैं, हमारा तो साक्षात्कार अभी शुरुआत ही है हमारी, वहाँ तक कहाँ पहुँचे हैं। तो एज सीकर्स हमें वी ओ इट टू आवर सेल्व्स टू कॉन्स्टेंटली वॉच कि ये हमें आ रहा है, डिज़ायर फॉर द इम्परमानेंट। और हमें जो है इसको बचना है और परमानेंट से जुड़े रहना है। अब उसका जो भी आपने मोडस ऑपरेंडी बनाया हो, जप का बनाया हो, पूजा का बनाया हो, मेडिटेशन का बनाया हो, तो वो आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करके उससे बचना है, पहली बात। दूसरी बात जो गुरुजी इंडिकेट कर रहे हैं, स्वामी तेजोमयानंदा जी इन हिज कमेंट्री, वो उस सिचुएशन की कर रहे हैं जो आप इतने अलर्ट हैं, इतने अलाइव हैं कि जो भी आप, जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं पैशनेटली, सांसारिक चीज़ में, तो आप उसको करीब से देखेंगे कि वो आपको अल्टीमेटली दुख ही देती है। कुछ भी चीज़ हो, वो है दुख का जड़ ही। एक एक चीज़ एन्यूमरेट करने से फ़ायदा नहीं है, चाहे वो आपकी स्वर्ग की इच्छा हो, चाहे आपके परिवार की इच्छा हो, चाहे आपके पैसे की इच्छा हो, हर चीज़ जो है अल्टीमेटली इट इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो। अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली और उसमें आप उससे लर्निंग ले ली, तो फिर आपको जो है क्रेविंग ख़त्म हो सकती है, क्योंकि आपके मन में दृढ़ता से बैठ गया कि यार इसमें पढ़ना ही क्यों है, तो है ही सौरों का सोर्स। ठीक है ना। तो गुरुजी इस चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो विद्वानों का, औरों का विचार है, जो जैसे मैंने बताया प्रेमानंद जी का, वो उनके हिसाब से आप जो है जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाएगा तब तक आप विचलित रहोगे। अब जैसे इन्होंने कहा भाई, उस टाइम उन्होंने रिजॉल्व भी करा, बट वो रेजोल्यूशन कितने दिन रहा? ये हर रोज़ होगा। आज आप टॉफ़ी खाओगे, 10 टॉफ़ी खा लोगे, आपको बुरा लगेगा, 4 रसगुल्ले खा लोगे, बुरा लगेगा आपको, यार कल से नहीं खाऊंगा। कल आएगी फिर आप रसगुल्ला खाने लग जाओगे। तो वो ये हमारी नेचर है। बट इफ़ यू बिकम अलाइव एंड अलर्ट कि ये इम्परमानेंट है, इसमें ये फंसना दलदल है, तो फिर हो सकता है। Merely by knowing this is impermanent, therefore I will get detached, that's not going to happen. Merely by knowledge, you will have to experience. और इसलिए अगर ये महाभारत में कुंती माँ ने श्री कृष्ण से मांगा
कि भाई प्रभु, उन्होंने कहा भी मुझसे जो चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा जी मैं आपसे एक ही चीज़ मांगती हूँ, मुझे आप हमेशा दुख में रखो। जो अत्यंत दुखी होता है वो वैरागी हो जाता है। और कुंती माँ का कहने का मतलब ये था कि जब मैं दुखी रहूँगी तो मैं आप ही को याद करूँगी बस, क्योंकि उनका तो लाइफ वॉज रिवॉल्विंग अराउंड हिम। तो ये इस भाव को पकड़ना भाव, उन्होंने भी ये कहा है कि जब आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई ये सब सॉरोफुल चीज़ें हैं, तो फिर आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। और आप रिफ्लेक्ट करिए लाइफ में, जो भी चीज़ आप बड़े आनंद से और बड़ी शौक से परस्यू करते हैं, इट एंड्स इन सॉरो ओनली, सूनर और लेटर। ये मतलब मैंने तो अनुभव करा है विद माई ग्रे हेयर, सो जस्ट शेयरिंग। ओके, so he is saying when he realizes that joy is not in the objects, he loses interest in them. This is audacium. Audacy is not being interested. अगर आप हिंदी में कहेंगे तो उदास होना, उदास वर्ड तो सुना है ना आपने, तो इसका संस्कृत है औदासीनियम, मीन्स यू रिमेन indifferent, knowing that there is no joy in the object per se. When he knows that true joy is in the nature of the eternal reality within, then there is total dispassion for every object, worldly or heavenly. और वो जब knowing the nature of the eternal reality is also, you have to understand कि भी आप उनसे तादाद में हो गया, whether in meditation or in bhakti, तभी आपको पता चलेगा। और फिर जब एक बार आपका तादाद में हो गया, देन यू आर आउट ऑफ इट। फिर आपको वो जो आपका तादाद में होगा और फिर जो एक्सपीरियंस होगा उसका, वो दैट विल बी सो वंडरफुल, इट कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स नॉर कैन इट बी एक्सपीरियंस आउटसाइड। तो फिर आप क्यों छोटी मोटी चीज़ के लिए क्यों जाओगे? अनिल जी कई बार कहते हैं कि भाई इट्स गिविंग लॉट ऑफ पीस। वो जो चीज़ उनको पीस दे रही है, वो जितनी जितनी स्थायी और लंबी होती चली जाएगी, तो फिर वो बाहर थोड़ा ना आएंगे उससे। और वो हमेशा हर जगह अवेलेबल है अरुण जी। हाँ, आप ही के साथ है ना। हाँ, अमेरिका में जो हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जंगल में हो, तो जो वो नित्य वस्तु एक है और वो सर्व जगह है, वो हर जगह अवेलेबल है। हाँ, हमेशा। और अगर आपको उसका स्वाद पड़ गया, बाकी सब स्वाद फीके हैं। तो वही उसी का प्रभु कृपा बढ़े, और या जो प्रभु इच्छा, वही उनका ही नाम रहे, उनका ही ध्यान रहे, उनका ही साथ रहे। जी हाँ। As long as one feels that objects have joy, one cannot but have likes or dislikes for them. अच्छा, ये मैं आई एम रीडिंग अहेड बट आई स्टार्टेड दिस। एक एक चीज़ हम जब कर रहे हैं ना, तो अगर हम सीरियस सीकर्स हैं तो हमको 24 घंटे के अंदर, बिफोर वी रीड द नेक्स्ट थिंग, वी आर गोइंग वेरी स्लो, बिफोर वी रीड द नेक्स्ट वन, we should ask ourselves, how am I going to incorporate it in my life? And then जो हमने एक्सरसाइज करी थी कि भाई सुबह उठोगे, रात को सोओगे, रिव्यू करोगे, तो हर चीज़ को आप इस तरह से देखोगे तो दिन प्रतिदिन आपका जो है ना प्रोग्रेस डिफरेंट होगी। अदरवाइज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये चीज़ें जितनी भी हैं ना, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम डिस्टिंग्विशिंग सत्संग फ्रॉम अ मियर रीडिंग। मियर रीडिंग आप सालों साल कर लीजिए, प्रवचन आप सालों साल सुन लीजिए, जब तक आप मनन और निधिध्यासन, उनके डाउट क्लैरिफिकेशन और उसको अपने में उतारने की प्रक्रिया नहीं करेंगे, वो उतरेगा ही नहीं। वो फिर बस श्रवण तक रह जाएगा, सुना यहाँ से वहाँ से निकल गया, फिर अगली बार जाके बैठ गए, हो सकता है याद रहे कि जी पिछली बार क्या सुना था, हो सकता है ना भी याद रहे, वो बस रोज़ ही कहोगे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करके तो आ जाओगे, बट उतरेगा नहीं। तो उतारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
One has to repeatedly reflect on the nature of objects to determine firmly that they have no joy. Or repeatedly reflect on them is जो भज गोविंदम ने भी कहा था, मनसी विचिंत्य वारम वारम. हमने जब वित्तेश्वर के ऊपर वर्ष 3 था शायद, देख लीजिएगा, उसमें नहीं, उसमें था नारी स्तन पर नाभि देशम, उसमें था मनसी विचिंत्य वारम वारम, वर्ष 3 ही था. ओके. One has to repeatedly reflect on the nature. One has to repeatedly reflect on the nature of objects to determine firmly that they have no joy, as the mind tends to superimpose joy either on the same or different objects. Every smoker knows and also experiences that cigarette smoking is injurious to health. Yet, most are unable to give up smoking. Because we have superimposed joy in that cigarette. है नहीं उसमें, sorrow ही है. और अगर कोई बिरला निकल आता है तो he is able to see the sorrow. Dispassion therefore is the strength to give up sorrow-giving, impermanent and joyless objects, mentally or physically. It is the absence of both like or dislike for objects. We have dispassion for particular objects but crave for certain others. जिनसे लाइकिंग है उनको हम चेज करते हैं, जिनसे लाइकिंग नहीं है उनको हम शन करते हैं. आइदर वे इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज वो वासना आपकी बनती जा रही है. वासना के बारे में हमने बात करी थी. फॉर एग्जाम्पल, मैनी आर डिसइंटरेस्टेड इन द जॉयज अवेलेबल इन देयर मदरलैंड बट क्रेव फॉर अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एल्सवेयर. हिंदुस्तान तो अच्छा नहीं लग रहा तो जर्मनी या यूरोप या अमेरिका में जाके रहो. One with total dispassion does not desire even the subtlest pleasures of the heavens. आया था ना, विराग कहा यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम. So if you have total dispassion, then you don't even want pleasures of heaven. Kathopanishad relates how young Nachiketa shunned all heavenly pleasures when Lord Yama offered them to him. ये स्टोरी लंबी है. To cut it short, Nachiketa went to Yamraj and wanted the knowledge of the truth to be given to him. So Yamraj had bound himself to fulfill his wish. So he couldn't get out of it. So he said, you take anything in the world. You take a life as long as you want to live, and I'll give you the boon that you will enjoy everything with the same vigor as now. Your sense of enjoyment will not diminish with age. And whatever you want to enjoy, you can take now or whenever you want. All the retinue of women, horses, elephants, and land, everything is at jo bhi lena le lo. But don't ask me the knowledge of truth. So Nachiket, he was a young boy of about 8 or 9. He said, you keep everything with yourself. You give me the knowledge of truth. That is the vairag, which I am sure all of us will fail once we are given this boon. Dispassion arises from discrimination. Dispassion purifies the mind and makes one capable of subtler discrimination. Hence, dispassion increases discrimination and vice versa. आपका नित्य नित्य विवेक भी बढ़ता है और ये वैराग भी बढ़ता है एक दूसरे से. Dispassion, I am finishing this because then just 2 paragraphs. Dispassion also arises out of choiceless yet dedicated performance of one's duties. This will do in due course. धर्मे ते विरति. धर्म से वैराग्य होता है when you follow it. एंड फिर वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है. दिस इज द कड़ी. ऑल्सो व्हेन एक्शंस आर परफॉर्म्ड एज अ डेडिकेटेड सर्विस टू द लॉर्ड, likes and dislikes decrease and dispassion increases. This is that verse 30 of chapter 3 of Gita. Whatever you do, offer it to God. One with dispassion is fearless
vairagyam eva abhayam. Who has vairagya is also has abhayam. And fear leads us to a lot of accumulation of useless things. As he does not depend upon anything for his joy. Because he has vairagya, so he is not dependent on anything for joy. He is peaceful and cheerful, irrespective of the presence or absence of objects of enjoyment. The man with passion lives for his own pleasure, whereas one with dispassion truly lives and serves others. Discrimination and dispassion are two wings on which the seeker flies towards the truth. Oh. Any questions? So, I'll end once again by reaffirming whatever we read, take a while, introspect and see how you can incorporate in your life. Right? Okay. वरुण जी, हाँ जी. मुझे लग रहा था एक ही टेक्स्ट करें क्या? हाँ, भज गोविंद करें. कोई भी एक टेक्स्ट करें. क्योंकि जैसे जो अनु जी ने पहले बोला टेक्स्ट चेंज करने से, इसका बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है. हाँ, तो ऐसा करते हैं, हमने ये आपकी छुट्टी गैर हाजिरी में हमने शुरू कर लिया था, तो अभी हम इसको रोक देते हैं और भज गोविंद भले इसी को करें, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि ये अपने आप में कंप्लीट टेक्स्ट है. हाँ, नहीं, कंप्लीट दोनों ही हैं. देखिए, ये क्या है, जैसे अब आप हम लाइक्स और डिसलाइक्स में ये आगाह कर रहे हैं ना, तो वो भज गोविंदम में क्या कह रहे हैं कि देखो ये आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, इसका नतीजा ये है. तो ये प्रतिपक्ष भाव है कि अगर आप लाइक्स और डिसलाइक्स में पड़े रहोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, और इसको आपको हेल्प करने वाले नहीं हैं. हमने वो पढ़ लिया कि आप ज़िंदगी भर जो है कमाते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते हो, आखिर में क्या होता है वो भी दिखा दिया उन्होंने. तो क्या करना है, यू हैव टू बी इन सर्च ऑफ द ट्रूथ. ये भी यही कह रहे हैं. ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है, नो डाउट. डेफिनेशंस हैं, फाउंडेशनल टेक्स्ट है. अब आप चॉइस आप दोनों की है, जैसा आप चाहें वैसे कर लेते हैं. मुझे जो अनु जी बोले वो वैसा कर ले. फाउंडेशनल टेक्स्ट है, so it's very nice because इतने सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आ रहे हैं which are preparing us for our journey ahead. That is more poetic. It has lyrics and it's content same है, but I think this is more textual. हाँ, टेक्सचुअल है, लेकिन वो अब चॉइस आपकी, जो जैसा करना चाहें वी कैन स्टॉप इट एंड पुट ऑन. अनु जी आप डिसाइड करिए. मेरे को तो लग रहा है एक ही करें, जो भी करें आप चूज कर लीजिए. देखिए अनिल जी, करेंगे तो हम दोनों ही, हम ऐसे कर सकते हैं, पहले तत्वबोधा खत्म कर दें, फिर व्हाटएवर. तो मुझे वही लग रहा है, हाफ हाफ नहीं करके एक को कंप्लीट करते हैं. ठीक है जी, लेट अस कंप्लीट तत्वबोध फर्स्ट. आई कांट हियर यू अनु जी. I said you are the teacher, so you decide. नहीं, आजकल के मॉडर्न टीचर्स तो वो करते हैं ना जो ऑडियंस कहती है. डिसीजन किया, लेट अस कंटिन्यू विद दिस. तत्वबोध जी. ठीक है जी, ओके जी, हरिओम.